Good morning, students. I am your science teacher, Miss Charu. Yesterday we started new chapter, that was the light, shadow and reflection. I told you about the basics of the chapter, about the luminous, non-luminous object, about the sources of light, natural sources, artificial sources. And I told you to read page 87 and 88. I hope you read these content and understood it. So last topic we did, that was the transparent, opaque and translucent object. I told you transparent object, the objects which allows the light to pass through them completely. वो objects जो अपने अंदर से light को completely pass होने देते हैं. For example, water, air and glass. Opaque objects which do not allow the light to pass through them. For example, metal, wood, wall, etc. And the translucent objects which allows the light to pass through them partially. These are the translucent objects. For example, the smoked glass, oiled paper, etc. So here is the activity related to this. The aim of the activity is to find out transparent, translucent और opaque materials. आपको आइडेंटिफाई करना है about the transparent, translucent and opaque material. Procedure है, collect the following from your study room and buy some from stationery shop. आपको यहाँ पे कुछ objects बताए गए हैं that you have to buy. The tracing paper, a piece of cloth, single sheet of paper, a notebook, pen, पेंसिल, इरेजर एंड अ प्लास्टिक स्केल. ये सब आपको बाय करना है. नाउ लुक एट फार ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू ईच ऑफ दीज. अब आपने क्या करना है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन. अब आपको इस टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है. सो दे आर आस्किंग अबाउट दीज 3 ऑब्जेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज द नोटबुक. यहाँ पे नोटबुक लिखा हुआ है. यहाँ पे आपको ये बताना है व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल. नोटबुक एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से आपका व्यू कैसा रहा, आपको क्या व्यू इसमें से नजर आया. सो हेयर यू विल राइट फुली, पार्शली और नॉट एट ऑल. इन तीनों में से एक चूज करना है. तो नोटबुक जो है उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती है. सो हेयर वी विल राइट नॉट एट ऑल एंड द टाइप इज ऑपेक. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑपेक ऑब्जेक्ट. Next is the tracing paper. Tracing paper allows the light partially to pass through them. तो यहाँ पे हम लिख देंगे partially and the type of the object is translucent. The last one is the sheet of writing paper. Writing paper है, उसमें से भी light completely pass नहीं कर सकती है. So here we will write not at all and the object will be opaque. So this is the activity 7.1. Now we will start our next topic, that is the ray and beam. The path along which the light energy travels in a given direction is called a ray of light. वो पाथ जिस पे लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है, मीन्स लाइट की जो एनर्जी है वो जिस पाथ पे ट्रैवल कर रही है एक गिवन डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं अ रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट को हम कैसे शो करते हैं, इट इज शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. Now, a collection of large number of rays of light is called a beam of light. ये एक लाइन थी, so this is the ray of light. जब यही बहुत सारी रेज आपस में मिल जाती हैं, collection of large number of rays, इन्हीं बहुत सारी लाइंस का जो कलेक्शन होता है, बहुत सारी रेज का जो कलेक्शन होता है, that is called the beam of light. There are 3 kinds of beam of light. 3 kinds of beam of light होती हैं. The first one is parallel beam of light, B is the convergent beam of light and C is the divergent beam of light. Now we will read about these 3 types of beam of light. The first one, when a large number of rays are parallel to each other, they are called a parallel beam of light. जब बहुत सारी जो rays हैं वो एक दूसरे के parallel होती हैं, like this. ये बहुत सारी रेज हैं बट ये एक दूसरे के पैरेलल हैं. पैरेलल मीन्स जो कभी भी मिलती नहीं है, हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में जाती जाएंगी. सो दीज आर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ओके. द सेकेंड वन, व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन मीट एट अ पॉइंट, सच अ कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. जब बहुत सारी रेज
आ रही हैं, बट वो आके एक सेम पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारी रेज आ रही है, 1 2 3 4, बट वो मिल इस एक सिंगल पॉइंट पे रही है। सो दिस इज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। The third one is when the rays of light starting from a point travels in various directions, the collection of such rays is called a divergent beam of light. यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल पॉइंट से रेज स्टार्ट हो रही है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रही है। ये एक पॉइंट है, यहाँ से रेज आ रही है तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। ये रे इधर गई, ये वाली इस साइड, ये इधर मीन्स स्टार्ट सेम पॉइंट से हो रही है बट दे आर डाइवर्टिंग इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन। सो दिस इज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पे ये रेज की एरोज के थ्रू जो है ये रे की डायरेक्शंस दिखाई हुई है। ओके, नाउ साइंस बिट्स में लिखा है लाइट इज नॉट विजिबल। लाइट विजिबल नहीं होती, बट द डस्ट पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम। बट जो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स हमें विजिबल हो जाते हैं। दिस इज द साइंस बिट्स।